جو میں اس کے بعد سمجھتا ہوں اس کی کیسٹریشن ہونی چاہیے, کیمیکل کیسٹریشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اراکین پارلیمنٹ کے درمیان طویل بحث و مباحثے اور اختلافات کے بعد کابینہ اجلاس میں بچوں اور خواتین کے ساتھ زیادتی سے متعلق مجوزہ کیسٹریشن کا قانون بھی ایک متنازع شکل اختیار کر چکا ہے. مذہبی حلقوں کے ساتھ ساتھ ذہنی امراض کے ماہرین بھی اس قانون کو ناقابل فہم قرار دے رہے ہیں. اس قانون کو لے کر عوامی سطح پر بھی مختلف قسم کی آراء پائی جاتی ہیں. گزشتہ ہفتے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں زیادتی کے مجرموں کو سخت سزائیں دینے کے لیے سفارشات منظور کر لی گئی تھیں. فیصلہ کیا گیا تھا کہ جنسی جرائم کو روکنے کے لیے کیسٹریشن کا جو قانون ہے وہ لایا جائے گا. خواجہ سراؤں کے ساتھ جنسی زیادتی کو بھی عصمت دری تصور کیا جائے گا. اس قانون کے تحت ایک کیمیکل جو ہے اس کے ذریعے ایک مخصوص مدت کے لیے مجرموں کی جنسی صلاحیت ختم کرنے کا عندیہ جو ہے وہ دیا گیا تھا. حکومت کی طرف سے تیار کردہ جو اینٹی ریپ آرڈیننس 2020 ہے اس کے مسودے کے مطابق خواتین پولیسنگ، فاسٹ ٹریک مقدمات اور گواہوں کا تحفظ مجوزہ قانون کا بنیادی حصہ ہوں گے. اس قانون کے مطابق زیادتی کرنے والوں کے لیے 10 سے 25 برس قید کے علاوہ تعمر قید اور موت کی سزائیں بھی ہوں گی. کیمیکل کیسٹریشن کچھ کیسز میں مخصوص مدت کے لیے یا پھر زندگی بھر کے لیے ہو سکے گی. جس روز کابینہ اجلاس میں یہ مسودہ پیش کیا گیا تھا اسی روز وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے بتایا تھا کہ پارلیمنٹ سے اس قانون کے منظور ہونے تک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے عمل درآمد کروایا جائے گا. حکومت اینٹی ریپ آرڈیننس کا منظور کردہ مسودہ صدر مملکت کو ارسال کرے گی اور صدر مملکت کے جو دستخط ہیں ان کے بعد یہ قانون نافذ العمل ہو جائے گا. وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے یہ بھی کہا تھا کہ اینٹی ریپ قانون کے مطابق مجرموں کو ان کی رضامندی سے کیمیائی طریقے سے نامرد بنایا جائے گا جو کہ ان کی بہتری کی جانب ایک قدم ہوگا. لیکن اس فیصلے کے بعد علماء دین کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے. خواتین کے ساتھ ریپ اور لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے مجرموں کو نامرد کرنے کی سزا کی مخالفت کرتے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ کہنا تھا کہ اسلام میں نامرد کرنے کی سزا کی کوئی گنجائش موجود ہے ہی نہیں. جبکہ ڈی جی اسلامی نظریاتی کونسل انعام الحق نے یہ کہا تھا کہ حکومت جب اسلامی نظریاتی کونسل سے تجاویز مانگے گی تو اپنی سفارشات وہ دیں گے. ماضی میں بھی چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ اعصاب بھی اس قانون کو اسلامی قوانین سے متصادم قرار دے چکے ہیں. جبکہ دوسری طرف تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے صدر اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے بھی مجرموں کو نامرد بنانے کے لیے آرڈیننس کو شریعت کے منافی قرار دیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ مجرموں کو نامرد بنانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنا ہے. انہوں نے واضح کیا تھا کہ اگر حدود آرڈیننس کے قانون پر عمل درآمد ہو جائے تو یہی کافی ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس فعل کے ہر قسم کے قوانین بتا دیے ہیں. جبکہ تحریک صراط مستقیم کے بانی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جیلانی نے مجوزہ آرڈیننس کو قرآن و سنت کے منافی قرار دے دیا اور ان کا کہنا تھا کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے زیادتی کے مجرم کے بارے میں نئی سزاؤں کی قانون سازی صرف ناجائز ہی نہیں دین اسلام سے بغاوت بھی ہے اور ایسے جرائم سے متعلق سزاؤں کا جو تعین ہے دین اسلام نے کر دیا ہوا ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ذہنی اور دماغی امراض کے معالجین بھی کیسٹریشن کو سمجھ سے بالاتر قرار دے رہے ہیں. مائنڈ سائنس ایکسپرٹس کے مطابق ایسی سزائیں جرائم کم کرنے کی بجائے اسے نہ صرف بڑھاوا دیں گی بلکہ دیگر کئی سنگین معاشرتی اور نفسیاتی مسائل کو بھی جنم دیں گی. مذہبی حلقوں اور اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے مجوزہ آرڈیننس پر اعتراضات کے بعد اس کی افادیت پر اب سنگین قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں. اب یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو کہ بہت زیادہ تیزی سے ایک ایسی برائی جو کہ بہت زیادہ تیزی سے معاشرے میں پھیل رہی ہے اور پھر اس کے اوپر ایک سخت قسم کا معاشرے میں جو افراد موجود ہیں ان کی طرف سے ایک ریئیکشن سامنے آتا ہے. لیکن یہ ایک بڑی عجیب و غریب افسوس کی بات ہے کہ وہ جب ایک فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں یا پھر اس کی افادیت کے اوپر اگر سنگین قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں یا پھر اگر وہ جو فیصلہ ہوا وہ متنازع ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ اس مسئلے کا حل کبھی نہیں نکال سکتے. تو یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. آخر حکومت نے قوانین بناتے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟
जो कानून बनाया जा रहा था उस पर सिफारिशात क्यों नहीं मांगी गई, मुशावरत क्यों नहीं की गई? अगर हुकूमत जिनसी दरिंदगी करने वालों को सजाएं देने के लिए इतनी ही संजीदा है तो फिर इस्लामी कवानीन के मुताबिक सजाओं का निफाज क्यों नहीं किया जाता? जब इस मसले का हल इस्लाम ने बता दिया है और उलमाए कराम ये बात कर रहे हैं तो इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर कुछ वज़रा को इस्लामी जो सजाओं हैं उनके निफाज पर एतराज़ क्यों कर हो सकता है? आखिर इंसानी हकूक की बात करने वाले वज़रा गैर इंसानी कवानीन पर किस तरह से राजी हो जाते हैं? ऐसे वक्त में जब मुल्क भर के अंदर बच्चों और ख़वातीन के साथ ज़्यादती के वाक़यात ना सिर्फ तसलसल के साथ रूनुमा हो रहे हैं बल्कि इन वाक़यात में मुसलसल जो है वो इजाफा भी हो रहा है, तो बनाए जाने वाले कवानीन इख्तलाफात की जद में हैं। ऐसे में इस तरह के घिनौने जराइम को आखिर किस तरह से रोका जा सकता है? प्रोग्राम में आज सबसे पहले इसी के ऊपर बात होगी। किबला अयाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन है जी इस्लामी नजरियाती काउंसिल के, और इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन करें। सबसे पहले किबला अयाज साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। किबला अयाज साहब ज़रा वजाहत के साथ सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि आप लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यानी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की तरफ से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, किन वजूहात की बिना पर किया गया और क्या एतराज़ है आपको इस कानून में? बड़ी मेहरबानी आपने इस मामले पे किया। 6 नवंबर तक मैं इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन रहा। अच्छा। उस वक्त तक इस हवाले से कोई मुशावरत नहीं की गई। ये ऑर्डिनेंस का मसला हुकूमत की तरफ से आया, तो अब तक मेरा ख्याल ये है क्योंकि अब तो कौन जो है वो गैर फाल हो गई है, 12 जनवरी की शादी हो गई है। ठीक है। काउंसिल में इस वक्त कोई इस हवाले से काम नहीं हो रहा, लेकिन शोबा तहकीक ने कुछ काम इस पर किया है। उस वक्त सबसे पहले नामत बनाने का मसला मीडिया में आया। सही है। कुछ काम काउंसिल के शोबा तहकीक का मौजूद है और मुझे उम्मीद है कि 6 किलोमीटर रिसर्च हमारा शोबा तहकीक करेगा काउंसिल का, और अगर ये आर्टिकल्स बाकायदा काउंसिल के पास रेफर कर ली जाए और काउंसिल के 12 मेंबरान का फैसला हो जाए तो जल्द से जल्द काउंसिल का इजलास होकर और इस बारे में काउंसिल की तरफ से मुताबिक आ जाएगी। लेकिन तो सूरत हाल ये है कि बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की ख़वातीन के साथ इस पे काउंसिल की बड़ी जामी रिपोर्ट पहले ही से तैयार है। अच्छा। पहला जो केस हुआ था उसके बाद नहीं, तो वो जो किबला अयाज वो जो रिपोर्ट तैयार है, क्या वो हुकूमत के साथ शेयर नहीं की गई? क्योंकि यही कहा गया कि चूंकि मुशावरत नहीं की गई इसलिए जो हैं वो आप लोगों की तरफ से सिफारिशात नहीं दी गई। बाय द बुक अगर आप चलते हैं, ज़ाब्ते के मुताबिक अगर आप चलते हैं तो जिस मामले में सिफारिशात नहीं मांगी जाती उस मामले में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जो है वो खामोशी इख्तियार करती है, सिफारिशात दी ही नहीं जाती हैं। हमने जो ज़ैनब कत्ल केस हुआ था तो उसमें मुख्तलिफ मुशावरतें थी। सबसे बड़ी मुशावरत ये थी कि बरसरेआम सजा, बरसरेआम फांसी। तो इस हवाले से हमने ये कहा था फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट में जमानत दी है, लेकिन ये सूरत मुमकिन है कि जेल के अंदर सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए ताज़ीर के हवाले से, और उसको मीडिया के जरिए मुस्तहद कर दिया जाए। लेकिन इससे पहले के कुछ हालात के गए और वो ये था कि पूरी तौर पर दर्ज हो और उसके लिए सेल्स का क़याम हो। और दूसरी बात यह है कि सजा की यकीनियत बहुत जरूरी है। इस वक्त पाकिस्तान में सजा की शिद्दत या शिद्दत मसला नहीं है, बल्कि मसला ये है क्या सजा हो। ठीक है। अच्छा किबला अयाज साहब, वापस हम आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, जब ये जो रेप केसेस जब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और इसके हवाले से हमने देखा कि मुआशरे में 2 तरह की राय पाई जाती थी। एक लोग शायद इतनी सख्त सजाओं को मुनासिब नहीं जानते थे, दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे थे कि सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए, और कुछ लोग जो थे वो ये कहते थे कि सरेआम फांसी की जो है वो सजा होनी चाहिए। और वो लोग इसकी लॉजिक ये देते थे कि अगर सजा
सजा और जजा का कॉन्सेप्ट होगा तो शायद इस तरह के जराइम जो हैं उनमें कमी आ सके। अगर आप किसी को निशान इबरत बना देंगे, एक मिसाल बना देंगे दूसरे लोगों के लिए, तो शायद इस तरह के जो वाक़यात हैं वो सोसाइटी में होना कम हो जाएं या आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म हो जाएं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ये लॉजिकल बात है और क्या ये लॉजिक उनका ठीक था कि निशान इबरत अगर एक शख्स को बना देंगे आप पकड़कर तो फिर जो है सोसाइटी में इस तरह के जो केसेस हैं उनकी तादाद कम हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे कौन हमारा एक बड़ा मसला है, हम बिलीव करते हैं बैंड एड थेरेपी। बैंड एड थेरेपी क्या होती है कि एक सड़क टूटी, आपने कुछ मट्टी डाली, उसके ऊपर आपने चारकोल डाला और रोलर बिछा दिया। नेक्स्ट ईयर फिर बारिश हुई, फिर वो मट्टी निकल गई, चारकोल निकल गया। अगर आपने सीरियसली किसी मसले को सॉल्व करना है हमेशा तो आपने उसके ऐसे कानून बनाने होंगे जो पूरा माशरा जिसको कबूल करे। मैं अपनी जाती हैसियत में नफ्सियात के माहिर के हिसाब से समझता हूँ कि आज के दौर में इंसान देखता ज्यादा है, सुनता कम है, क्योंकि हमारी आंखें हमें ज्यादा मालूमात देती है बनिस्बत हमारे कान। तो जब कोई चीज देखी जाती है उसका असर ज्यादा होता है बनिस्बत सुनी जाती है। तो अगर आप ऐसी सजा दें जो सरेआम नजर आए, अवाम को दिखाई जा सके। मुझे ये बताइए सऊदी अरेबिया में जराइम कम क्यों है? क्योंकि जाहिर है वहां पे सजा इतनी सख्त है कि मनुष्यात के जो लोग हैं वो भी बड़े एहतियात से काम तो करते हैं मगर बहुत एहतियात से। सिंगापुर में क्यों इतनी सख्त है? तो एहतियात आम क्यों नहीं है? क्योंकि सजाए मौत है। तो अगर आप समझते हैं कि आपको ये कानून बनाना होगा, अगर इस मुल्क में हमारी बेटी बच्चियों की, बहनों की, माओं की हिफाजत करनी होगी तो हमें बड़ा सख्त कानून बनाना होगा और वो कानून की सजा ऐसी हो कि देखने वाले का दिल जो है वो दहक जाए, ताकि कभी कोई शख्स सोचे ना ये काम करने का। तो दो चीजें बहुत जरूरी है। नंबर वन, ये यकीन हो जाए कि अगर एक शख्स ने कोई जुर्म किया है तो वो पकड़ा जाएगा, ये यकीन बड़ा जरूरी है। और दूसरा उसके पकड़ के बाद उसको सजा मिलेगी। और तो ये तो मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। अगर स्पेसिफिकली डॉक्टर साहब, अगर हम स्पेसिफिकली ये कैस्ट्रेशन के कानून के ऊपर बात कर लें, क्योंकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद इस तरह की सजा अगर आप देंगे तो हो सकता है कि वो शख्स जिसको ये सजा दी जा रही हो वो मुआशरे के लिए आगे चलकर ज्यादा एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर मुआशरे के लिए ज्यादा खतरनाक जो है वो हो जाए। आप समझते हैं कि ये सजा जो है ये एक बेहतर तरीकाकार है इस तरह के जुर्म को रोकने का? मेरे ख्याल में होना ही चाहिए था कि हुकूमत कैस्ट्रेशन की सजा के बारे में सोचने से पहले कुछ लोगों को बुलाती, कुछ डॉक्टर्स को बुलाती, माहिर नफ्सियात को बुलाती। मैं आपको समझाता हूँ कैस्ट्रेशन से होता क्या है। कैस्ट्रेशन जब किया जाता है तो एक शख्स में, उस शख्स के अंदर एग्रेशन पैदा होता है, तशद्दुद पैदा होता है, शदीद गुस्सा पैदा होता है। दूसरी तरफ एक अजीब सी चीज होती है, उसको कहते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है उसको। अच्छा, ये दोनों अगर मिल जाए तो एक बम की तरह बनती है। वो शख्स को आप उसकी जो जिनसी सलाहियत है वो मुकम्मल खत्म नहीं करते, उसमें सलाहियत कम हो जाती है। अच्छा। मगर जो उसमें गुस्सा, इश्तियाल, उसमें इंतकामी कार्रवाई और उसकी इज्जत नफ्स जो मजरू होती है, उससे वो बड़े खतरनाक काम कर सकता है। यानी वो जो कुछ कर चुका है उससे भी ज्यादा कर सकता है। तो मेरे ख्याल में कैस्ट्रेशन इस मसले का हल नहीं है। इस मसले का हल ऐसा होना चाहिए कि जिसमें वो शख्स जिसने जो सजा दी है उस सजा को इस तरह दिखाया जाए और इतनी खतरनाक और संगीन हो कि देखना वाले जो है डॉक्टर साहब वो क्या हो सकता है? वो क्या सरेआम फांसी हो सकती है कि अगर लोगों को दिखाकर कोई फांसी अगर दी जाए तो वो इसका एक हल हो सकता है? मुख्तसर बताइएगा, मुझे एक ब्रेक लेना है, फिर वापस आते हैं। जी, मगरिब ने 17वीं सदी और 18वीं सदी के अंदर वो सजाएं बड़ी सरेआम दी। उसके बाद वहां लोगों के अंदर तब्दीली आई क्योंकि देखने के इंसान डर गया। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये खत्म हो, पहली तो चीज है कि चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर नीयत है कि ये खत्म हो, हमारे घर वाले बच्चियां महफूज हो, तो आपको सजा सख्त से सख्त देनी होगी और सरेआम देनी होगी। ठीक है जी, ठीक है। डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब, किबला याद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का एक बड़ा एतराज़ जो सामने आया वो ये था कि इस्लाम ने जब इस तरह के जराइम के लिए सजाएं मुतय्यन कर रखी हैं तो फिर हम अपने कानून को बनाते हुए उन इस्लामी सजाओं के को मद्देनजर क्यों नहीं रखते, या इस्लाम के मुताबिक जो है वो सजा क्यों नहीं दी जाती? किबला याद साहब से भी इस पर मुझे बात करनी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक।
बैक जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं हम जी काबीना इजलास में बच्चों और खवातीन के साथ ज्यादती के मुतालिक जो कानून था उसके हवाले से, जिस पर जो है मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, और जहाँ पर इसको अप्रिशिएट किया गया वहाँ पर मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनकी जानिब से इनको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। किबला याद साहब चेयरमैन, साबिक चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल, और डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब हमारे साथ इस पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है। किबला साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जैसा मैंने एक सवाल छोड़ा था वो ये कि आप लोगों का सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि जब इस्लामी सज़ाएं मौजूद हैं इस तरह के जराइम को लेकर के, तो क्यों जो है वो इस तरह की सज़ाएं उनको नाफिज करने की कोशिश की जा रही है जो कि गैर इस्लामी हैं। मुझे ये बताएगा किबला याद साहब कि अगर मैं पूछूं कि इस्लाम में किस किस्म की सज़ाएं जो हैं वो तजवीज़ की हैं इस्लाम ने हमें, तो क्या कहेंगे आप? अगर इस तरह के जराइम को रोकना दरकार है तो फिर इस्लाम क्या कहता है इस हवाले से? देखें, उसमें तो ज़िना के और लिवातत के अपने अहकामात हैं, मुख्तलिफ केसेस हैं, उसमें हुदूद भी हैं, ताज़ीरात भी हैं। हुदूद का सिलसिला तो तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन एक्ट जो जनरल मुशर्रफ के दौर में नाफिज हुआ, तो हुदूद का सिलसिला तो मुअत्तल हो गया है, लेकिन ताज़ीरात की गुंजाइश है। और ताज़ीरात में हनफी फ़िक़्ह के अंदर ये मुमकिन है कि हद से भी ज्यादा सख्त सजा हो। मतलब ये है कि फांसी, मौत की सजा मुमकिन है इस किस्म के जराइम में। लेकिन जो सवाल हमारे सामने पेश आया था, जिससे बड़ी बहस हुई, वो सरेआम फांसी की थी। उसमें हमने ये रिपोर्ट दी है इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कि सरेआम फांसी की ये सूरत इस वक्त भी मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तो अपनी जगह मौजूद है, ठीक है, लेकिन लेकिन अगर जेल के अंदर सजा हो, फांसी हो और 30-40 लोग मौजूद हों, ये गुंजाइश है ताज़ीरात पाकिस्तान में, और फिर उसको मीडिया के जरिए मुश्तहर कर दिया जाए, क्योंकि सजा का जो मकसद है वो इबरत है, डिटरेंस है। तो ये मकसद इस सूरत में भी हासिल हो सकता है, क्योंकि अब जो जदीद इश्तिहारी और तशहीरी मैकेनिज्म और तरीके आए हैं, इसकी वजह से तो इबरत के लिए ज्यादा लोग उस सजा को देखेंगे। यानी किबला याद साहब, इस्लामी नजरियाती काउंसिल को जो असल जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो कैस्ट्रेशन पर थे, सरेआम फांसी की जो बात की गई उसके ऊपर जो है वो गुंजाइश मौजूद है, और उसके ऊपर उस तरह से आपको एतराज़ात नहीं बल्कि उसका तरीकाकार आपने वज़ा कर दिया। डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब, डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं, ऐसी और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं या फिर ऐसे कौन से अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू हो सकते हैं? अब तक ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि इस तरह के जराइम को रोकने में मददगार साबित हो सकती थी, लेकिन आपको लगता है कि हुकूमत ने शायद उसके ऊपर काम नहीं किया और वो करना जरूरी है? मेरे ख्याल में हमें एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जब तक आवाम के अंदर शऊर बेदार नहीं होगा, हमारे यहाँ तालीम नहीं है, जहालत बहुत ज्यादा है और पढ़े लिखों में भी बहुत जहालत है। तो मेरे ख्याल में जब तक शऊर बेदार ना हो, देखें नियरली हर घर में कोई या कोई किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बहू होती होगी और होती है। तो अगर उन घरों के अंदर जो बड़े लोग हैं उनमें ये शऊर बेदार हो जाए कि हमें अपने बच्चियों की या बच्चों की कैसे हिफाजत करनी है, वो मुहिम आपके मीडिया के थ्रू हो सकती है। उलमाए कराम इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि इस बात पे तो कन्फर्म है ना कि दीन इस्लाम भी जो है वो इस किस्म की मुजरिमाना हरकतों को बर्दाश्त नहीं करता। देखिए, अगर किसी शख्स को कैंसर हो जाए तो आप उस जिस्म का हिस्सा काटते हैं। अगर आपको पाकिस्तान के माशरे को कैंसर से बचाना है तो आपने इन कैंसर वाले अफराद को निकालना होगा इस माशरे में, और इसके लिए मीडिया हो गया, उलमाए कराम हो गए और दूसरे फैक्टर जो सोसाइटी के हैं वो मिलकर कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए कि साल 2 साल की एक अवेयरनेस कैंपेन हो। अवेयरनेस कैंपेन वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब। किबला याद साहब हमारे साथ मौजूद थे इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। अवेयरनेस कैंपेन्स की बात है और मैं अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में खुद भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर देती रही हूँ कि अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप एक कानून बना देते हैं और एक आम आदमी को ना तो को पता होता है कि क्या कानून बनाए। अगर आप ये डर की बात करते हैं कि डर होना चाहिए, तो एक आम आदमी तक वो बात पहुँचती ही नहीं है, तो वो क्या डरेगा या फिर क्या उसको अवेयरनेस उससे आएगी। तो ये बहुत जरूरी चीज है अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं। एक छोटा सा यहाँ पर मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक जब वापस आएंगे तो बड़ी अहम स्टोरी के ऊपर हमें बात करनी है। पीटीआई का सिग्नेचर प्रोजेक्ट बिलियन ट्री सुनामी जो है वो बड़ी तनकीद की जद में इस वक्त आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम उसका रिकॉर्ड तलब कर लिए। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। साथ रहिए।
इंसाफ का लैंड मार्क प्रोजेक्ट बिलियन ट्री सुनामी, जिसकी दुनिया भर में तारीफें की गई, माहौल को साजगार बनाने के लिए तारीखी मंसूबा कहा जाता रहा। पीटीआई जिसे हकीकी तब्दीली करार देती रही, जमीन व आसमान के खिलाबे मिलाए जाते रहे और बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता रहा। खुद वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम इस मंसूबे पर फूले नहीं समा रही थी, अब एहतसाब के शिकंजे में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ के कई दूसरे दावों की तरह खोखला साबित हो रहा है। आज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के इस बेबी प्रोजेक्ट बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का नोटिस लेकर तमाम तर रिकॉर्ड तलब कर लिया है। 1 अरब दरख्त उगाने की हमारी कोशिश अब ये बिलियन ट्री सुनामी की ये बड़ी जरूरी है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। In our country, in the last 5 years, we successfully planted 5 billion trees in one of our provinces called KP. Now we have launched a nationwide project to plant 10 billion trees in the next 5 years. वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो दावा किया गया कि मुल्क भर में अब 10 अरब दरख्त लगाए जाएंगे। हुकूमत को तो 2.5 बरस बीत गए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में दरियाओं नहरों के किनारों पर शजरकारी से मुतालिक जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की तो जिम्मेदारान पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने डीजी माहौलियात से यह सवाल किया कि इस्लामाबाद में 5 लाख दरख्त कहाँ लगाए गए हैं, इस बारे में कोई तफसील ही नहीं है। क्या आपने सारे दरख्त बनी गाला में ही लगाए होंगे? इस्लामाबाद में दरख्त कट रहे हैं, कश्मीर हाईवे पर बेतरतीब दरख्त लगे हुए हैं जो खूबसूरती को बढ़ाने की बजाय बदसूरती पैदा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स ये भी दिए कि माजरत के साथ केपी के जो मुख्तलिफ जंगलात का सारा अमला है वो चोर है। कुमराट, नथिया गली, मालम जब्बा और बरी समेत कहीं दरख्त नजर नहीं आते। नथिया गली में दरख्त कट रहे हैं, नारायण का खान कचरा बन गया है। आखिर केपी का बिलियन ट्री सुनामी है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी माहौलियात की सरजनिश करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपको तो जेल भेज देना चाहिए, जबकि सिंध हुकूमत की तरफ से झीलों और शाहराहों के इतराफ दरख्त लगाने से मुतालिक रिपोर्ट पेश न करने पर भी बरहमी का इजहार किया गया और रिमार्क्स दिए कि सिंध में इंसानों का जीना मुश्किल है तो दरख्त कैसे रहेंगे। सिंध में डाकू पकड़ने के नाम पर लाड़काना के करीब जंगल काटा गया, पूरे जंगल साफ हो गए लेकिन पकड़ा कोई नहीं गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिंध के अफसरान जेल भी जाएंगे और नौकरी से भी जाएंगे। समाअत के दौरान पंजाब का मामला आया तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 25,000 मील किनाल रोड के इलाके में 3 लाख दरख्त कुछ भी नहीं है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिंध और पंजाब हुकूमत को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी कर दिए गए। जस्टिस इजाजुल एहसन ने भी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने रिमार्क्स दिए कि कागजों में आधा पाकिस्तान जंगल है, असल में जंगल कहीं नहीं है। वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली अदालत में पेश हुए, जिस पर चीफ जस्टिस ने बिलियन ट्री सुनामी से मुतालिक सवाल किया तो बताया गया कि 430 मिलियन दरख्त लगाए गए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 430 मिलियन दरख्त कहाँ लगे हैं। 430 मिलियन दरख्तों का लगना नाकाबिले फहम लगता है। अगर 430 मिलियन दरख्त लग चुके होते तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाती। इतने दरख्त लगने से हमारा मौसम बिल्कुल तब्दील हो जाता। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि 430 मिलियन दरख्त कहां से लाए गए, जिस पर सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली ने जवाब दिया कि अपने मुल्क की नर्सरियों से तमाम दरख्त मंगवाए गए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अजीब बात है, इतने ज्यादा दरख्त नर्सरियों में कैसे पड़े हुए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम पूरे मुल्क में मजिस्ट्रेट भिजवा कर 430 मिलियन दरख्त लगने की तहकीकात करवाएंगे। बाद अदालत ने बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की तमाम तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि आगाह किया जाए कि मंसूबे पर अब तक कितने फंड्स खर्च हुए हैं। फंड्स खर्च होने का जवाब भी बमर रिकॉर्ड पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तफसीलात जो हैं वो तस्वीर समेत फराहम करने का हुक्म भी दिया है, जबकि वजारत मौसमियाती तब्दीली से सैटेलाइट तस्वीर भी मंगवानी है। लेकिन सवाल ये है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर मौजूदा हुकूमत की तमाम तर तवज्जो रही, उसमें भी वो अदालत को मुतमईन आखिर क्यों नहीं कर पाए? क्या वाकई 1 अरब 12 करोड़ नए दरख्त लगाए गए थे, जैसा कि इमरान खान साहब माजी में दावे भी करते रहे हैं? आखिर इस मंसूबे की शफाफियत पर सवालात क्यों उठ रहे हैं? सवाल ये भी है कि माजी में बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे पर जो उंगलियां उठाई जाती रहीं वो किस हद तक ठीक हैं? हुकूमत माहौल को साजगार बनाने के लिए आखिर इक़दामात कर क्या रही है? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब। बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बिलियन ट्री सुनामी, अगर इसको तहरीक
तहरीक इंसाफ का सिग्नेचर प्रोजेक्ट कहें या फिर लैंड मार्क प्रोजेक्ट कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेती रही है तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसका। आज सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ इसका नोटिस लिया बल्कि काफ़ी बरहमी का इजहार भी किया। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आप लोगों की तमाम तर तवज्जो रही, क्यों आप लोग अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे मलिक साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, एक तो हम ये वेलकम करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस लिया है और इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट को तमाम डेटा जो हमारे पास है वो फराहम करेंगे। और जो 10 बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट है ये इसका मॉडल ये है कि इसमें 50% फंडिंग फेडरल गवर्नमेंट की है, 50% फंडिंग जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कर रही हैं। इसकी जो प्लानिंग जो है वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंस मिलके करते हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन है इसकी प्रोजेक्ट की वो प्रोविंस करता है और फिर उसके बाद मॉनिटरिंग उसकी जो है और जो उसकी कोऑर्डिनेशन है तमाम पाकिस्तान में वो फेडरल गवर्नमेंट करता है। तो इंशाल्लाह इसके अंदर जो डेटा हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक 43 करोड़ दरख्त जो तमाम प्रोविंसेस में अभी तक लग चुके हैं। हमारे पास 30 करोड़ पौधे जो हैं तकरीबन वो नर्सरीज़ के अंदर मौजूद हैं और इंशाल्लाह जो हमारे आगे आने वाले टारगेट्स हैं वो हमारे ये हैं कि इंशाल्लाह 2021 में हम अपना पहला बिलियन जो है इसका वो कंप्लीट करेंगे। तो इसका जो डेटा है कि ये कहाँ पे लगाए गए, किस जगह पे लगे, कौन से लगे, इसकी ड्रोन फुटेज, इसके फोटोग्राफ्स, इंशाल्लाह इस तमाम से हम सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर फर्निश करेंगे। और जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस लिया है इंशाल्लाह इससे मैं तो समझता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा तकवीत मिलेगी क्योंकि हमने डिपार्टमेंट्स को एनर्जाइज करना है, उनको पुश करना है। तो बिल्कुल आपको मिलेगी मलिक साहब, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये बरहमी का इजहार हुआ है और काफ़ी बरहमी का इजहार हुआ है, ये जो एतराज़ात उठाए गए हैं, जो सवालात किए गए हैं, क्या वो ठीक है सारे? देखिए इसमें प्रोजेक्ट की कम्युनिकेशन एक स्ट्रेटजी भी होती है कि कुछ जिस तरह डेरा इस्माइल खान में अगर दरख्त लग रहे हैं या बन्नू के किसी एरिया में दरख्त लग रहे हैं तो वो कई बार नहीं पता होता कि वो विजिबल नहीं होते, लेकिन उसका डाटा हमारे पास मौजूद है और इंशाल्लाह वो ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह जब हम डाटा फराहम करेंगे तो जो भी खदशात हैं और जो उनकी जो चले वो जो उन एरियाज में थे मलिक साहब वो तो एक अलग बात रही। दावा जो किया था ना खान साहब ने फरवरी 2018 में वो 1 अरब 12 करोड़ दरख्त लगाने का किया था और उसके बाद फिर हमने देखा किसी प्रोजेक्ट के हवाले से बेज़ाब्तियां जो हैं वो भी सामने आती रही, मौजूदा अपोजिशन भी उसके ऊपर तनकीद करती रही। मुझे ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब नोटिस ले लिया है, क्या वाकई 1 अरब 12 करोड़ बहुत बड़ी तादाद है? क्या वाकई ये दरख्त लगाए गए थे? जी बिल्कुल, आपने जो सवाल किया इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जो केपी में प्रोजेक्ट हुआ था उसमें 1 अरब 18 करोड़ दरख्त लगे थे, जिसमें 60% दरख्त जो थे वो असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन से हुए थे, जिसमें नेचुरल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके उनको नेचुरली रीजनरेट किया गया था और बाकी 40% जो है वो वहाँ पर प्लांटेशन फॉरेस्ट हुए थे। ये वाहिद प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का जो कि अंडर बजट हुआ, मतलब ये कि ये 22 अरब का PC1 बना था और 14 अरब में ख़त्म हुआ था। अगर इस प्रोजेक्ट में करप्शन करनी होती तो ये 22 अरब का प्रोजेक्ट 40 अरब में जाके ख़त्म होता। दूसरा इसमें ये बात है कि ये प्रोजेक्ट वाहिद है जो कि ओवर टारगेट गया, इसमें 1 अरब का टारगेट रखा गया और 1 अरब 18 करोड़ दरख्त लगाए गए। इसकी जो वेरिफिकेशन है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने की। WWF ने इंटरनेशनल ने इसकी 3 ऑडिट परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट्स निकाली, अभी भी वो वेबसाइट पे मौजूद हैं। इसके वेबसाइट के ऊपर वो तमाम साइट्स मौजूद हैं। लेकिन आपको याद होगा कि पार्लियामेंट की इंक्वायरी कमेटी भी तो बनी थी ना मलिक साहब इसके ऊपर, और फिर कमेटी के रुकन अकरम दुरानी ने इंकशाफ किया था कि 1 अरब 12 करोड़ दरख्तों की आप बात करते हैं, वहां पर तो 10 करोड़ दरख्त भी आप लोग नहीं लगा सके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब जो एतराजात उठाए उसके बाद तो फिर जान दिखाई देती है अकरम दुरानी साहब के उस स्टेटमेंट में। अकरम दुरानी साहब की कमेटी ने तो यही फैसला देना था, लेकिन मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो इंटरनेशनल क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस की बता रहा हूँ जो कि थर्ड पार्टी जिनकी क्रेडिबिलिटी है दुनिया के अंदर। अकरम दुरानी साहब की क्या क्रेडिबिलिटी है कि वो दरख्तों को गिनेंगे जाके? एक जिस ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो WWF क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, IUCN क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, FAO क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने रिपोर्ट्स लिखी हुई हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 5 वीडियोस बना के इंटरनेशनल अपने वेबसाइट पे इस प्रोजेक्ट की लगाई हैं एज अ एग्जांपल फॉर द वर्ल्ड। तो ये तो दुनिया के उन प्रोजेक्ट्स में से है जो कि दुनिया इसको
اس کی تقلید کرتی ہے کہ اس کا ماڈل کیا تھا اور سکسیس کرنے کا طریقہ کار کیا تھا، اور انشاءاللہ جو اس کے فیکٹس ہیں وہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں، اور اس سے وہ ٹرانسپیرنٹلی کریڈیبلی انشاءاللہ ہم اس میں سپریم کورٹ نے جو آج ڈیٹا مانگا انشاءاللہ وہ ہم پروونس سے لے کے ان کو فراہم کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے پورا کہ وہ اس میں سیٹسفائی ہوں گے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پاکستان میں اتنی زیادہ ضرورت ہے درختوں کی کہ ہم جتنے لگائیں وہ کم ہے اور جتنی کوشش کریں وہ کم ہے، اور اس میں ہمیں درخت لگانے بھی ہیں۔ ملک صاحب چیف جسٹس نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی سخت قسم کے ریمارکس جو ہیں وہ دیے ہیں، اور محکمہ جنگلات کے عملے پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ بھی محکمانہ کارروائی کر چکی ہے، بڑے پیمانے پر خود بخود بھی سامنے آئی تھی، تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو ہے ایسا جہاں پر جو ہے وہ معاملات خراب ہیں اور جس کی وجہ سے یہ بدعنوانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ بالکل، ڈپارٹمنٹس ہمارے یہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، ان ڈپارٹمنٹس میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ درختوں کو کاٹ کے اپنی نوکری کیا کرتے تھے، لیکن یہاں پر ہم نے اس کو درست کیا ہے۔ کے پی کے اندر بھی ہم نے زیرو ٹالرنس رکھی تھی ٹمبر مافیا کے لیے بھی، اور ٹمبر مافیا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ سے باہر بھی ہے اور ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی کام کرتی تھی، تو ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت سارے لوگوں کو فارغ کیا گیا تھا، جس کے بعد ڈپارٹمنٹس بہتر طریقے سے کام کر سکے تھے اور ڈیلیور کر سکے تھے اس پروونس کو۔ اسی طرح پنجاب میں اور باقی سارے پروونسز کے اندر بھی یہی چیز کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں اس کو گراؤنڈ کے اوپر، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس طرح کے پی میں ایک فلیگ شپ پروجیکٹ بنا تھا، اور کے پی کی اچھا ملک صاحب، آڈیٹر جنرل کی ایک رپورٹ بھی سامنے آئی تھی، اور اس رپورٹ میں انکشاف ہوا تھا کہ ایک پودا جو 9 روپے کا ہونا چاہیے تھا یا 9 روپے میں خریدا جانا چاہیے تھا، وہ 17 روپے میں خریدا گیا، اور پھر 462 ملین روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچا۔ گوسٹ ملازمین کے حوالے سے بھی اس رپورٹ کے اندر ذکر تھا۔ تو عمران خان کا نعرہ تو کرپشن کے خاتمہ تھا، سب سے بڑا نعرہ، ان کی ناک کے نیچے کیسے ہوتا رہا اگر ہم آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کو دیکھیں تو؟ دیکھیں، جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ تھی ٹوٹل، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پی سی 1 اس پروجیکٹ کا بنا تھا 22 ارب کا پروجیکٹ، یہ کمپلیٹ ہوا 14 ارب کے اندر، تو اگر یہ اس پروجیکٹ نے کرپشن کرنی ہوتی تو یہ 22 کی جگہ 60 ارب پہ جاتا پروجیکٹ، 22 سے 14 ارب کے اوپر نہ آتا۔ دوسری اس کی بات یہ ہے کہ جو آڈیٹر جنرل نے باضابطگیاں اس میں دیکھی تھیں وہ آئی تھنک 30 سے 40 کروڑ روپے کی تھیں، اور اس میں اتنے بڑے پروجیکٹ میں یہ پرابلمز ہوتی ہیں، مطلب وہاں پہ کوئی نہ کوئی ہوگا ایسا جو کہ اس کو ابیوز کر رہا ہوگا اپنی پوزیشن کو وہاں پہ، اور اس کو ضرور پکڑنا چاہیے۔ لیکن آپ کوانٹم بھی دیکھیں کہ اگر آپ 40 کروڑ کی باضابطگیاں دیکھیں 14 ارب کے پروجیکٹ کے اندر، تو آپ کو کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ اس کے اندر جو ریگولیرٹیز ہوئی ہیں ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور اس میں لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے اور پروجیکٹ کو آگے لے کے جانا ہے۔ اگر وہ باضابطگی ہوں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ملک میں ہم درخت لگانا بند کر دیں، ملک کے اندر پروجیکٹ یہ جو اتنا بڑا سکسیسفل پروجیکٹ ہے اس کو بند کر دیں۔ یہ پروجیکٹ انشاءاللہ آگے چلنا ہے، اس نے اس ملک کو سرو کرنا ہے اور اس ملک کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ ملک امین اسلم صاحب۔ وقت یہاں پر چونکہ ختم ہو گیا، مشیر وزیر اعظم برائے موسمیاتی تبدیلی بلین ٹری پروجیکٹ کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے۔ بلین ٹری پروجیکٹ یقیناً بڑا اہم اور ضروری، لیکن اربن سٹیز میں جس طریقے سے آلودگی بڑھ رہی ہے وہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ آج چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے اربن سٹیز ہماری جو ہیں، یعنی لاہور کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو لاہور کا پہلا نمبر ہوتا ہے اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کے گرنے کی ایک لسٹ ہوتی ہے کہ سب سے گرا ہوا ایئر کوالٹی انڈیکس کہاں ہے تو وہ لاہور میں ہوتا ہے۔ تو یقیناً توجہ طلب ایک چیز ہے کہ اب